Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing very good and all of you are learning from your home these online lectures, online video lectures that we are taking. My dear students, as you all have now reached to higher secondary after completing your 10th successfully. So, this is our first video lecture from my side in your class 11th. So first of all, I would like to congratulate all of you for successfully clearing class 10th and moving ahead with class 11th. Dear students, the class 11th is, as you know, quite very important in your career, because from here onwards you decide your exit path, which field you want to move. Till 10th it was all basic, all general, all were same. Now bifurcations will be there. Some will go to commerce, some will go to science. So that will define their path, that will define their career, that will define their lifetime. So it is that important moment, that whether you are in commerce or you are in science, right? But the subject that we are going to learn together, that is health and physical education. This subject comes in both. Let it be you a commerce student or let it be you are a science student. This subject comes in both. What is the reason why it comes in both? Because it is equally important to all of you. No matter which stream you are in, no matter what field you are in, no matter what career you are going forward, if you are not healthy, if you are not physically fit, nothing is important. Right? So that is why this subject is present in both streams. आप आजकल देख रहे होंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लाखों करोड़ों लोग इफेक्टेड हैं, तो क्या उसमें कोई बाइफर्केशन है क्या कि सिर्फ कॉमर्स वालों को कोरोना होता है या सिर्फ साइंस वालों को होता है, या सिर्फ कॉमर्स वालों को अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, या सिर्फ साइंस वालों को अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना है? अरे कॉमर्स साइंस ना रखा हो, पढ़े लिखे ना हो, घर पे बैठे हों, कुछ काम धंधा मजदूरी करते हों, उनको भी तो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का ध्यान रखना है। तो अपनी हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस का तो हर एक को ख्याल रखना है। इसीलिए ये सब्जेक्ट हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहने को तो 6 सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट, बट ये ज़िंदगी बचाने वाला सब्जेक्ट है। कैसे ज़िंदगी बचाने वाला? 2 तरीके से, आपको पता होगा। अगर आप 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम में कहीं पे एक आध सब्जेक्ट में यहाँ वहाँ हो गए और अगर इसके अंदर आप पास हैं तो आपका 12th बच गया, तो ज़िंदगी बच गई आपकी। और दूसरा कौन सा तरीका कि ये सीखने के बाद इसको अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली खुद की हेल्थ वाइज और फिटनेस वाइज फिट रहेंगे, ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होंगी, देन ऑल्सो योर लाइफ इज़ सेव्ड। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ लाइफ सेविंग सब्जेक्ट। इसीलिए जिनके मन में भी ये दुविधा हो कि यार ये तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है या एडिशनल है, कई लोग बोलते हैं एडिशनल है, इसलिए आज पहला दिन है तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एडिशनल नहीं है, ये लाइफ सेविंग है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितने बुद्धिमता वाले हैं, आप कितने अक्लवान हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने समझदार हैं, कि आप इसकी इम्पोर्टेंस कितनी समझ पाते हैं, कितनी नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज के पहले दिन पे कि जो सब्जेक्ट है वो 2 चीज़ों का मिश्रण है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकली भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, फाइल, और थियोरेटिकल पढ़ाई भी करनी है। ग्राउंड पे भी सीखा जाएगा, ये क्लासरूम में भी सीखा जाएगा। So this is both theoretical as well as practical, and that is why the importance is much more compared to the other subjects. And one more thing, that after learning this subject, see, as a physical education teacher, my objective will not be just to teach the subject and just complete the syllabus. No, I want all of you to take this subject in your real life, adopt it, whatever you learn from it, apply it in your life. Means, for example, if suppose you learn the chapter called yoga,
then you must apply this topic or this chapter in your day-to-day life. Otherwise there is no sense in only remembering and mugging up and writing down in examination. It doesn't make any sense. So that's why when you learn this chapter, it is equally important for you to apply it in your real life. And that is why my try will be always throughout the year to make it possible for you people, to explain you people that how important it is, right? So this is how the importance of this subject is. मुझे लगा आज ज़रा पहले दिन पे मैं आपको ये 2 शब्द बताऊं ज़रा कि क्या इम्पोर्टेंस है. बाकी तो आप ज़्यादा अक्लवान हो, ज़्यादा समझदार हो, आप समझते हो किसकी वैल्यू है किसकी नहीं, और किसकी वैल्यू है किसकी वैल्यू नहीं है. ये समझने के बाद भी अगर हम फॉलो ना करें, अप्लाई ना करें, लाइफ के अंदर अडॉप्ट ना करें, तो फिर अक्लवान में से मूर्खता की ओर हम ही आगे बढ़ते हैं अपने खुद के कारण ही, है ना. तो इसकी इम्पोर्टेंस समझ के उस हिसाब से इसके साथ डील करिएगा, राइट. तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. सबसे पहले हम देखते हैं कि CBSE के द्वारा क्या सिलेबस दिया गया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ द सिलेबस गिवन बाय CBSE बोर्ड. सबसे पहला काम तो आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं. टिल क्लास 10th इट वॉज नॉट देयर इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. हाँ था, लेकिन सिर्फ उसको आप गेम्स का पीरियड मानते थे. कोई थियोरेटिकल पढ़ाई नहीं होती थी, कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी, कोई लिखावट, कोई एग्ज़ाम नहीं होती थी उसकी. बट नाउ it is a theoretical subject like other subjects. So first of all you must remember the code number. The code number given by CBSE for this physical education is 048. So here is in front of your screen the class 11th syllabus for the year 2020-21 of the subject physical education with code number 048. As you can see the syllabus, last final exam in the month of March of the next 2021 year, it would be of 70 marks. 30 marks would be for practical, file and project and whatever you make it, and 70 marks exam, written exam will be there like other subjects. Now if you see the syllabus, जरा जल्दी से syllabus की गौर करें. This full syllabus is divided into 10 different units. I'm saying units, I'm not saying chapters. If you look at the index in your textbook, there will be 12 chapters. बट 12 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स एक ही यूनिट में साथ में हैं. तो यूनिट वाइज देखने जाए, CBSE यूनिट वाइज बात करती है, तो यूनिट वाइज देखने जाए, सो देर आर 10 यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर होल ईयर सिलेबस. मैं फटाफट उनके नाम अगर आपको बताऊं और थोड़ा सा सबके बारे में इंट्रोडक्शन बताऊं, क्योंकि ज़रूरी है पहले दिन पे, हर बार ज़रूरी है, चाहे सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, देन यू मस्ट नो वॉट विल कम इन द सब्जेक्ट. एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ चैप्टर, then you must know what will be coming in the chapter on the very first day. That's why I'm telling you, the first unit is changing trends and career in physical education. That what are the latest trend, आजकल क्या चल रहा है मार्केट में फिजिकल एजुकेशन में, and what are the career option, that after learning this subject क्या कोई जॉब के ऑप्शंस हैं. अगर आप इसमें निष्णांत हैं तो क्या आप कुछ इसमें आगे कमा सकते हैं, कोई कैरियर बन सकता है आपका. So first chapter is basically about career options and how the trends are changing nowadays in the subject called physical education. Okay. Second one is about Olympic movement. Olympics आप देखते होंगे टीवी पे, सुनते होंगे उनके बारे में, फॉलो भी करते होंगे, है ना. समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, ये सारे आप फॉलो करते होंगे. बहुत सारी इवेंट्स आप देखते होंगे, बहुत सारी नहीं भी देखते होंगे. तो ओलंपिक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है. फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट और टीचर दोनों को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट. फिजिकल एजुकेशन में दौड़ लगाना, चाहे कूदना, ये करना, वो करना, जंपिंग करना, चाहे हज़ारों इवेंट्स हो, उनका मेन कंपटीशन कौन सा है. बाकी तो नॉर्मल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे बहुत सारे होते रहते हैं कंपटीशन. बट जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जो मेन, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, दैट इज़ विच वन, दैट इज़ ओलंपिक. और इसीलिए वो यहाँ दिया हुआ है, दैट यू मस्ट नो अबाउट ओलंपिक्स. थर्ड यूनिट इज़ अबाउट फिजिकल फिटनेस, wellness and lifestyle. That what is the importance, how you can be physically fit, how you can be well, how you can change your lifestyle. So this unit is about that. क्या क्या components हो सकते हैं, क्या importance है, क्या meaning है physical fitness का. Fitness word हम बहुत बार यूज़ तो करते हैं, but what is the exact meaning? Fourth unit is for physical education and sports for differently abled. डिफरेंटली एबल्ड मतलब
कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़ी बहुत शारीरिक या मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, जो हमारी तरह नॉर्मल नहीं हैं। कई बार उनको हम गलत वर्ड से पुकारते हैं, हम उनको हैंडीकैप कहते हैं। कई बार किसी का एक हाथ ना हो, एक पाँव ना हो, मेंटली थोड़े से रिटार्डेड हो, तो उसको हम हैंडीकैप्ड वर्ड यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वर्ड। हैंडीकैप वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। हैंडीकैप का मीनिंग है अपंग, ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन दूसरा वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड, मतलब इनमें कुछ अलग क्षमता है जो हम में नहीं है। सो डिफरेंटली एबल्ड मतलब कुछ अलग तरीके से क्षमता जिनमें हो, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, तो उनके लिए फिजिकल फिटनेस ऑब्वियसली अलग होगा। उनकी कॉम्पिटिशन्स नॉर्मल बच्चों के साथ तो नहीं हो सकती, उनकी कॉम्पिटिशन्स अलग होती हैं। जैसे आप देखते होंगे ब्लाइंड लोग जो हों, उनके लिए क्रिकेट कंपटीशन, क्रिकेट वर्ल्ड कप अलग से होता है, तो उनको तो अलग कैटेगरी में उनकी स्पोर्ट्स इवेंट्स करवानी पड़ती हैं। तो उनके लिए क्या है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो वो इस चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट इज अबाउट फिफ्थ चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फुल सिलेबस, दैट इज योगा। एंड यू नो nowadays what is the importance of yoga, how you can do yoga and keep yourself fit, and you can improve or increase your immunity power, and you can fight against the corona. So that is why this chapter is the most important as per me for the full syllabus. Sixth unit is about physical activity and leadership training, that if you are a leader, what could be your qualities, what could be your role. आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी टीम के कप्तान हैं, वॉलीबॉल टीम खेल रही है आपकी, अगर आप लीडर हैं, कप्तान हैं, व्हाट कुड बी योर रोल, व्हाट कुड बी द क्वालिटीज़ दैट यू मस्ट हैव, हाउ यू शुड टेक योर टीम टुगेदर विथ यू सो दैट योर टीम्स more often than not wins the competitions, right? So this is about leadership training and all. Next comes the next one, it is the seventh one, unit number 7. It is test, measurements and evaluation. बहुत सारी टेस्ट होती है ना, आप भी जब 10th तक पढ़े हैं, ग्राउंड में खेले हैं, बहुत सारी टेस्ट मेज़रमेंट आपके टीचर करते हैं, BMI हो, वेस्ट हिप रेशियो हो, बहुत सारी ऐसी टेस्ट हैं जो आपके टीचर करते हैं। तो उन टेस्ट की मेजरमेंट्स कैसे होती है ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, यूनिट नंबर 8 इज़ अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनिकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। अब ये आप जो यूनिट नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, वो इंडेक्स के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन दोनों को मिला के है। तो यूनिट वाइज ये 8वां यूनिट है, चैप्टर के हिसाब से 8 और 9 मिला के जो होता है वो है। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत बायोलॉजी का पार्ट आएगा, थोड़ा बहुत फिज़िक्स का पार्ट आएगा। तो मोर ऑफन ये साइंस वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए ज़्यादा सुनी सुनाई चीज़ें इन चैप्टर्स में आएंगी, क्योंकि आखिरकार फिज़िकल एजुकेशन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, और बॉडी में जो हर फंडा है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी के साथ तो जुड़ा हुआ है। तो फिज़िकल एजुकेशन को दूसरे नाम से सॉफ्ट बायोलॉजी भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट कम्स, इट इज़ यूनिट नंबर 9 विच इज़ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। मैनी टाइम्स वी टॉक अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, वी थिंक दैट इट इज़ ओनली अबाउट बॉडी, it is only about physical things, but no, nowadays physical education is about mental games also. You need to plan, you need to think about what opponent is thinking, so it is all mind game. So psychology is also equally important. And the last, unit number 10 is about training and doping in sports. You must be knowing that if you are a physical education teacher or a student, ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता होगा, क्रिकेट की बात करो आप, मैचेस तो साल में 365 दिन में से शायद 150-200 दिन खेलते हों, बाकी 150-200 दिन उनके ट्रैवलिंग में थोड़ा रेस्ट करने में निकल जाते हों। लेकिन चाहे ट्रैवलिंग हो, लेट इट बी अ रेस्ट टाइम, देयर विल ऑलवेज़ बी अ ट्रेनिंग, दे विल ऑलवेज़ बी डूइंग द ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे वेयर दे आर नॉट ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड डॉपिंग, डॉपिंग मीन्स कई बार आपने देखा होगा कुछ अनवांटेड चीज़ें स्पोर्ट्स के फील्ड में होती हैं, जैसे कोई अल्कोहल लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं। अब इनकी क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन पे क्या एक्शंस हो सकते हैं, ये क्या नहीं करना चाहिए, ये कैसे साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं। सो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट डॉपिंग। ओके, सो ये जो 10th यूनिट है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से, इट इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12।
बोथ आर टुगेदर। सो आपने देखा होगा 2 यूनिट ऐसे आए जहाँ पे 2 चैप्टर साथ में आए, एक 8वां यूनिट जिसमें 8 और 9 इंडेक्स के हिसाब से ये 2 साथ में थे, और एक ये 10वां यूनिट जिसमें 11 और 12 नंबर के चैप्टर साथ में हैं। सो ओवरऑल एज पर द CBSE syllabus there are 10 units and as per the index there are 12 chapters. Okay, so this was very important. On the very first day you must be knowing what will come in your syllabus, what will you learn for the full year. That is more equally important, and that is why I talked about all the different units, mainly highlighted points. इससे आपको शायद चल गया होगा पता that everything is almost covered. If you think about the field of sports, क्या क्या होना चाहिए, माइंड गेम, फिजिकल गेम, ट्रेनिंग, टेस्ट, मेजरमेंट, डिफरेंटली एबल बच्चे, एवरीथिंग इज कवर्ड, एंड ऑब्वियसली it is the base of class 12th. So the class 12 chapters will also be related to these topics only. So if you are doing well here, it will be very important and useful for you people in class 12. So my advice to you people would be to look after this subject in a very, very, very serious way. Now if you look at on your screen, this 10 units, as I told you 10 minutes before, that this 10 units are a part of theoretical subject, which will have an examination of 70 marks at the end of the year in the upcoming March 2020-21. But the total marks is always 100. So if this is the 70 marks portion, what about the remaining 30 marks portion? ये भी तो साल के शुरुआत में पता होना चाहिए, because the project is for the full year. So remaining 30 marks is for the practical part. 70 marks for theoretical part and remaining 30 marks is for practical part. Same part of system is there in class 12th also. When you will come to the class 12th next year, you will find the same pattern. 70 theory, 30 practical. All will be evaluated here, 30 marks, and it will send to the CBSE board. 30 marks का सब कुछ evaluation यहाँ होगा स्कूल के अंदर, and the marks will be sent to the CBSE board. And then when your examination will be done, और जब result आएगा तो everything will be combined and you will get the result. So 30 marks we people are going to send to the CBSE board, right? So what is there in this 30 marks? So look at on your screen. The 30 marks practical part is divided into 5 parts. 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है ये 30 मार्क्स का पोर्शन. पहले 6 मार्क्स उसमें से जो है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब आपको ग्राउंड पे लेके जाया जाएगा, कुछ टेस्ट होंगी जो आपको पहले से बताई जाएंगी, दैट दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड, और आउट ऑफ 6 मार्क्स उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे. सो इट्स ऑल अ प्रैक्टिकल पार्ट. सेकेंड इज प्रोफिशिएंसी इन गेम्स इन स्पोर्ट्स, स्किल ऑफ एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द गिवन लिस्ट. अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नीचे एक लिस्ट दी है, इसी में यहीं पे एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, चेस, जूडो, शूटिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, टेनिस, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स, रोप स्कीपिंग, योगा, बास्केटबॉल, अलग अलग ये लिस्ट दिया है. इन लिस्ट में से आपको कोई एक इवेंट पसंद करनी है साल के शुरुआत में, और आपका पूरा प्रोजेक्ट इसी इवेंट के आसपास घूमेगा. तो आप ये इवेंट अगर चूज़ करते हैं, मान लीजिए आप चूज़ करते हैं बॉक्सिंग, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बॉक्सिंग के आसपास घूमेगा. उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे खेली जाती हैं, क्या मैचेस होती हैं, क्या टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से अवार्ड उसमें दिए जाते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं इंडियन नेशनल लेवल पे जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया हो, ओलंपिक में जीते हों, कहीं और जीते हों, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन चैम्पियन हैं. सो एवरीथिंग अबाउट बॉक्सिंग यू नीड टू टॉक एंड यू नीड टू पुट इट ऑन योर पेपर, और उसका प्रोजेक्ट बनाना होगा. सो यू नीड टू सिलेक्ट योर फेवरेट स्पोर्ट्स, और आप जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं उस पर फिर आपको प्रोजेक्ट तो बनाना ही है, बट आपको उसमें से कोई एक ट्रिक भी आनी चाहिए कि आपको भी बॉक्सिंग आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको नहीं आती और आपने पसंद कर लिया. तो आपको ऐसी गेम पसंद करनी है, वहाँ आपको खेल के पूछा जाएगा कि आप ये खेल के बताएं, आप इसमें एक्सपर्ट है तो आप ये करके बताएं, ये करके बताएं. सो दिस विल ऑल्सो बी ए प्रैक्टिकल पार्ट. तो इसके मार्क्स रहेंगे कुल मिला के 7. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ योगा प्रैक्टिसेस. So in your practical part, throughout the year you will be learning yoga. So in your final examination of this 30 marks, you will be asked to perform some of the yoga. कि ये आसन परफॉर्म करिए, ये आसन परफॉर्म करिए, and you will be given marks from 7 again. The next one is record file. अब जो मैंने कहा वो बॉक्सिंग आपने पसंद किया है तो उसके बारे में आपने पूरी फाइल बनाई होगी.
वो जो पूरी फाइल बनाई है आपने वो कैसे प्रेजेंट की है, सब कुछ लिखा है कि नहीं, कॉपी तो कहीं नहीं किया, अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट किया है, उसके 5 मार्क्स हैं। ऊपर तो जो था 7 मार्क्स का वो तो उसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। कोई बोले कि आप ये करके दिखाओ बॉक्सिंग का, ये करके दिखाओ, तो उसके मार्क्स थे। फाइल के मार्क्स यहाँ पे हैं 5 मार्क्स। ओके, सो वट एवर प्रोजेक्ट यू आर मेकिंग it has 5 marks. And the last one is viva walk. Viva walk means there will be an oral examination, 1-to-1. I will be sitting, some other teacher will be sitting, and you will be sitting in front of us, and there will be an oral examination. जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है उसी के बारे में, और ओवरऑल जो आपने 11th में PE में पूरा पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और उसके 5 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो हो गए ना, दैट इज 6 + 7 13 + 7 20 + 5 25 and + 5 30. So this is how your 30 marks practical examination will be there in the month of February or March, whatever in the next year, right? So this 30 and that 70. अब शायद सारे क्वेश्चंस आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि पूरा साल कैसे चलने वाला है, 70 मार्क्स कहाँ पे, 30 मार्क्स कहाँ पे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में आप चिंता ना करें, आपको सैम्पल दिखाया जाएगा स्कूल में कि पिछले साल वाले बच्चों ने कैसी फाइल बनाई थी, आपको कैसी बनानी है, कोई चेंजेस हैं क्या। फिर भी आपको अभी डिटेल चाहिए हो तो ये रहा, देखिए इसी में नीचे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड फाइल सेल्फ इंक्लूड, जो 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट बनाने के हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल 1 2 3 4 5 इनके बारे में दिया गया है। तो जब आप ये फिज़िकल टेक्स्ट बुक, फिज़िकल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक आप स्कूल में से लेंगे तब उसमें 3 चीज़ें साथ में आएंगी। एक टेक्स्ट बुक आएगी, एक जर्नल मतलब ये जो प्रोजेक्ट बनाना है ना वो आपको पन्नों में नहीं लिखना है, जर्नल बुक आती है स्पोर्ट्स की ही, उसी के साथ किट में, उस किट के अंदर जो बुक आती है जर्नल, उस जर्नल में आपको लिखना है। एंड तीसरी चीज़ उस किट में होगी लैब मैनुअल। लैब मैनुअल मीन्स जो आपको इस प्रोजेक्ट में लिखना है सब कुछ, बॉक्सिंग के बारे में, गेम्स के बारे में सब कुछ, और रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आप कहाँ से लिखेंगे, वो आपको एक पूरी लैब मैनुअल आती है फिज़िकल एजुकेशन की, उस मैनुअल में से लिखना है। सो इन 3 चीज़ों का एक सेट आता है पूरा, स्कूल की ओर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में, तब आपको पेमेंट करना होगा और तब आपको वो जब वो बुक आ जाए तो लेके जानी होगी। तो ये 3 चीज़ें इस हिसाब से आपको मंगवानी होंगी जिसके अंदर सब कुछ पूरे साल का ये पैकेज होगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने अच्छे से अब समझ लिया होगा दैट व्हाट विल कम इन द फुल ईयर, 70 मार्क्स थियरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, व्हाट यू नीड टू डू, आई मीन ऑन द वेरी फर्स्ट डे इट मस्ट बी वेरी क्लियर, because otherwise what is the sense if just I speak and you learn and you listen and you don't know anything, you don't know what is the structure, then what is the sense? That is why it is equally important on the very first day that you should understand that what is the procedure, right? So that's why I told you. अब जो अभी हमने जो सिलेबस देखा पूरा, the full syllabus that was given by CBSE, and every year some changes are there. And this year also, because of the less time, CBSE has already reduced the syllabus. So out of the topics given in the content, अब जो इससे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे था वो CBSE के द्वारा दिया गया सिलेबस था। अब जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, राइट, इंडेक्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो वो जो सिलेबस में जो टॉपिक हैं उससे ज़्यादा टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिए हैं। तो कौन से टॉपिक सिलेबस के हिसाब से इस साल का हिस्सा हैं और कौन से टॉपिक नहीं हैं वो मैंने यहाँ टिक किए हैं। तो आप इनको देखिए और जब भी आपके पास टेक्स्ट बुक आए तब आप ये टिक कर लीजिएगा। ये हमारी ओर से टिक नहीं है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो चैप्टर के अंदर दिए रहते हैं इन द इंडेक्स पार्ट एंड विच इज़ नॉट एज पर द पार्ट ऑफ CBSE syllabus, they are shown here. So the right marks are the topic which you need to do as per CBSE, not as per our school system. And those topics which do not have any tick mark, they are not supposed to do. So only right topics are to be done. Okay, so note down these topics whenever you get your textbook.
Right now, if you wish, you can just note it down in your notebook. Okay? So you can note down these topics from chapter number 1 to chapter number 12. As I told you, there are total 12 different chapters available in this index. So you should note down all these right marks, that which topics will be there and which topics will not be there as per the CBSE syllabus 2020-21. Okay? So now, after discussing everything, the importance and the syllabus, theory, practical, chapter, which topics to be done, which not to be done, everything that I must tell you on the very first day is over now. Now we can move towards the starting of the syllabus, that is the first chapter. Right? So now I am starting the first chapter of your class 11th syllabus. जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपने देखा होगा, जो ये टिक किए हुए हैं 6-7 टॉपिक दिए हैं इंडेक्स के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, बट CBSE सिलेबस के हिसाब से आपने देखे हों तो 3 टॉपिक में राइट का टिक था, तो मतलब यही 3 टॉपिक करने हैं सिर्फ आपको, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो सबके पास स्कूल में से कोई बुक्स मिली नहीं है, तो सबके पास बुक्स तो है नहीं, तो अभी हाल फिलहाल मैं आपको जब तक बुक्स ना आए तब तक सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में भेजता रहूँगा चैप्टर की। तो इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक करनी है CBSE सिलेबस के हिसाब से, तो इन 3 टॉपिक की टेक्स्ट बुक में से PDF बना के मैं आपको हर बार जब जब ज़रूरत होगी तो ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, उसमें से आप पढ़ाई करते रहें जब तक आपकी बुक ना आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट वन, दैट इज़ चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। एज आई टोल्ड यू, रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या चल रहा है आजकल इस फील्ड में, उसके बारे में, और क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, दैट वी वांट टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। Physical education is not a new concept. It has been used in various forms from an ancient period but holds different meanings to different people. Physical education कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ही पौराणिक समय से चलता आ रहा है, लेकिन लोगों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। Physical education indeed is a very broad term and a very complex concept. At the very beginning, it was used by people as a term used for physical activities and exercises. Physical education जो है वो इतना छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसका। At the very beginning, it was used by people. शुरुआत में क्या होता था, जब ये पहली बार शब्द पिक्चर में आया, सब्जेक्ट पिक्चर में आया, तो लोग इसको सिर्फ क्या मानते हैं कि बस ये तो एक्सरसाइज करना होता है। फिजिकल एजुकेशन मीन्स ओनली टू डू द एक्सरसाइज। द मेजर एम्फेसिस ऑन फिजिकल एजुकेशन वॉज लेड डाउन इन एंशिएंट ग्रीस। पौराणिक समय में ग्रीस देश में इस पे ज़्यादा जोर आया, इस पे ज़्यादा बातें होने लगी, इस पे ज़्यादा काम होने लगे। फिजिकल एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज आर सेड टू बी ए मस्ट फॉर द पीपल अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ फेमस फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल। बहुत ही प्रख्यात फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, उनके मुताबिक कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ये तो हर बंदे के लिए कंपलसरी होना चाहिए, रूल होना चाहिए ये, क्योंकि ये उन्हीं की सेहत के लिए ज़रूरी है। इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो पीपल इंक्लूडेड फिजिकल एक्टिविटीज़ एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। पुराने ज़माने में भारत में भी देखें तो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ योगा करते थे, जानते हैं हम ये सब। द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन डेवलप सिविलाइजेशन आफ्टर सिविलाइजेशन। द रियल मीनिंग जो है वो सिविलाइजेशन के बाद डेवलप हुआ फिजिकल एजुकेशन का। डिफरेंट आइडियाज हैव कम इन टू फोर फ्रंट एज टू वॉट इट ओरिजिनेटेड एज। अलग अलग आइडियाज़ मिलने लगे कि क्या ये कहाँ से इसका उद्भव हुआ। समटाइम्स इट वॉज थॉट ऑफ ए फिजिकल एक्टिविटी, अ गेम, अ कल्चर, अ रिक्रिएशन और एनीथिंग द फिज़िकल ट्रेनर यूज टू डू। पहले इसको माना जाता था कि ये तो सिर्फ गेम्स हैं, ये कोई फिज़िकल एक्टिविटी है और कुछ नहीं, बट इन फैक्ट इट हैज़ डेवलप्ड एज अ ब्रॉडर कंसेप्ट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये ना एक सिर्फ गेम्स नहीं, बट एक अलग तरीके से उभर के आया कि ये सिर्फ गेम्स नहीं, ये तो पूरा एक विषय है और बहुत बड़ा विषय है।
इसके बारे में स्टडी होनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इसको अच्छे से लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बनाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता गया, है ना। तो ये है पहला छोटा सा टॉपिक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर ending this our first video lecture because time is almost getting over। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर को यहाँ स्टॉप करने जा रहे हैं। एक टॉपिक हमने आज पढ़ा, 3 जो टिक किए हुए थे इंडेक्स में, इस चैप्टर के 3 टॉपिक जो CBSE सिलेबस के हिसाब से करने हैं उसमें से एक पढ़ा हमने। बाकी 2 जब अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, है ना। तो आज का ये इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक ऑल्सो, ये यहाँ पे आज पे समाप्त होता है। तो आज इससे पहले कि हम सेशन पूरा करें, आपका होमवर्क क्या रहेगा? सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा एक अच्छी सी फेयर नोटबुक बनाना फिजिकल एजुकेशन की। उसके अंदर सबसे पहले सिलेबस नोट डाउन करना। पहले तो ये नोट डाउन करना कि 100 मार्क्स का है सब्जेक्ट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा, 70, दूसरे पार्ट में 30 में क्या क्या चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के बारे में वो उसमें नोट डाउन करिएगा। 70 में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, सिर्फ यूनिट के नाम लिखिएगा, भले उसके आप अंदर के टॉपिक ना लिखें, है ना। तो पहले ये सब कुछ इंट्रोडक्शन लिखिएगा सिलेबस के बारे में, एवरीथिंग अच्छे से वो हो जाए। फिर पहला चैप्टर टाइटल लगाइएगा, शुरू करिएगा और उसका पहला क्वेश्चन फॉर्म में लिखिएगा कि डिस्कस मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऐसे क्वेश्चन लिखिएगा और उसका आंसर जितना मैंने ये समझाया हाफ पेज का, बिल्कुल वैसे का वैसा कॉपी टू कॉपी सब कुछ पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आधा पेज, बिना कुछ स्किप किए। जितना लिखा है सब कुछ लिखना है आपको, कुछ स्किप नहीं करना है, आंसर को छोटा नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। तो एक क्वेश्चन और ये सिलेबस के बारे में इतना लिखना आज के आपके होमवर्क में है। ओके, तो यहाँ सेशन को स्टॉप करते हैं, अगली बार जब मिलेंगे तो चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू so much and have a very good day and take care of yourself. Thank you.